Hello student, today we will read chapter number 5, that is coal and petroleum. All of you know very well that air, water, soil and minerals are our basic need. All of us need air, water, soil and mineral. Without these we can't survive our life. So these are our basic need, and all these we obtain from nature. They are called the natural resources. All are natural resources. Now natural resources can be broadly classified into two kinds: inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो खत्म न होने वाले रिसोर्सेज है वो इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और जो भविष्य में खत्म हो जाएंगे उन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, those resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely be exhausted by the human activity. ये नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये खत्म नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर. नाउ exhaustible natural resources, the amount of these resources in nature limited. इनकी मात्रा नेचर में लिमिटेड है, एक सीमित तक है. They can be exhausted by human activities. ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे. एग्जाम्पल ऑफ these resources are forest, wildlife, mineral, coal, petroleum, natural gas. These are the exhaustible natural resources जो भविष्य में यूज करने पर ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे. In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. In this chapter we will discuss about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. We will separately discuss these three topics. So first of all we will read about the coal. First of all we will read about the coal. Coal is a mixture of carbon and its compound with hydrogen and oxygen. It is as hard as stone. ये पत्थर की तरह कठोर होता है. and is black in color, और इसका रंग काला होता है. सभी जानते हैं कोयले के बारे में. Coal is one of the fuel used. Coal was one of the fuel used to cook food in earlier times. पुराने समय में कोयला एकमात्र खाना पकाने का साधन हुआ करता था. अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू रन द ट्रेन. इसे रेलवे इंजन में भी उपयोग किया जाता था रेलगाड़ी को खींचने के लिए. Nowadays it is used in thermal power plant to produce the electricity and in many industries to get the energy, to run the factories, to run the machineries. Now story of coal means how coal is produced inside the earth crust. Let we see. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पर बहुत ज़्यादा घना जंगल था. Due to the natural process like the flooding, earthquake, इन सब नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये जंगल
में जो पेड़ पौधे थे बड़े बड़े, ये धरती के नीचे समा गए। दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। और जैसे जैसे मिट्टी उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती गई और वो धरती के नीचे और डीप डीप जाते गए और इस तरह से वे बहुत गहराई में दब गए। The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted to coal. और इस तरह से वे धरती के गहराई में समा गए और धरती के अंदर बहुत अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान और अत्यधिक प्रेशर होने की वजह से जो डेड प्लांट्स हैं वो कोयले में तब्दील हो गए। As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called the carbonization. कोयले में कार्बन मुख्य रूप से होता है और कोयले डेड प्लांट्स, डेड वेजिटेशन जो दब गए हैं उसका कोयले में परिवर्तन होना, ये इसमें परिवर्तन होने में कार्बन का कोयले के रूप में परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगता है और इस स्लो प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। द कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो डेड प्लांट्स हैं, डेड वेजिटेशन है, उसका कोयले में रूपांतर होना, इस क्रिया को कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। बिकॉज डेड वेजिटेशन ऑल्सो हैज द कार्बन, कोल ऑल्सो हैज द कार्बन। नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ कोल फॉर्मेशन। इन नेक्स्ट वी विल see the different form of coal. Coal, when it is heated in air, burn in air, it produces carbon dioxide gas. And coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal, coal tar and coal gas. इसका मतलब इंडस्ट्री में कोल को प्रोसेस करके, मतलब उस पर कुछ क्रिया करके उसे कोक में, कोल टार में और कोल गैस में परिवर्तित की जाती है। हाउ, कैसे, ये हम देखेंगे। व्हाट इज कोक? कोक इज ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। ये कठोर, छिद्रयुक्त और काला पदार्थ होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। ये स्टील उत्पादन में और बहुत से धातुओं के उत्पादन में कोक का उपयोग किया जाता है। कोल टार इज ऑल्सो ए ब्लैक इन कलर। इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत ज़्यादा तीखी इसकी गंध होती है और इसका रंग काला होता है और ये गाढ़ा लिक्विड होता है जिसे कोल टार कहा जाता है। एंड इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। एंड दिस कोल टार इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द daily life products. Many daily life products like the synthetic dyes, drugs, explosive, perfume, plastic, paint, photographic material, roofing material, etc., etc. There are lot of things that we get from coal tar. By processing the coal tar, we get many day-to-day basic needs things
such as the dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paint, photographic material, roofing material, etc. Naphthalene ball also we get from the coal tar that we use to repel the moths and many insects. Naphthalene ball, डामर गोली जो है वो मक्खियों को और बहुत से कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसे भी हम कोल टार से प्राप्त करते हैं। कोल टार रोड बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। बट नाउ इट डेज बिटुमेन इज यूज्ड, इट इज़ ए पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड टू मेटलिंग द रोड इन प्लेस ऑफ कोल टार। तो आज के युग में कोल टार के स्थान पर बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका उपयोग किया जाता है रास्ते को बनाने में। कोल गैस, जब कोक बनाया जाता है उस प्रोसेस के दौरान एक गैस निकलती है, उसे ही कोल गैस कहा जाता है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक एंड इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। तो इस कोल गैस को फ्यूल के रूप में बहुत से कारखानों में उपयोग में लाया जाता है। इन नेक्स्ट टॉपिक we will discuss about the in next video we will discuss about the topic petroleum, isn't it?